Good morning, dear students. In the previous lectures, we have already studied about what is marketing, what is customer relationship management, what is marketing research, and how marketing works. Today, we are going to discuss an important issue related to the marketing. Very important issue. And that issue is related to the ethics. Now, what is ethics? Ethic is nothing but a difference between what is good and what is bad. Ethic is a line between what is to be done and what is not to be done. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, पैसे बनाने के चक्कर में कंपनी कितना कस्टमर को फंसाने का, लूटने का काम करती है, कितना कंपनी डैमेज करती है कस्टमर को. वो कस्टमर को जितना नुकसान होता है, वो नुकसान के बारे में स्टडी करना मतलब मार्केटिंग एथिक है. एथिक इज a rules, a regulation. Ethic is a system. Ethic is a compliances. Ethic is a procedure. And the most important thing is ethic is a code of conduct. कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स व्हाट, कि कैसे हमें कौन से सिचुएशन में बिहेव करना चाहिए, वो सिखाता है अपने को बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक हमें सिखाता है कि हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. So today we are going to study in detail what unethical practices are, what ethical behaviors are, or what is marketing ethics. In future, you will become a manager or a marketing head or a sales head of any company. So what you are expected to do, what you are supposed to do, and how you need to maintain your company's image. पैसे कमाने के चक्कर में आप लोगों को फंसाने की कोशिश करोगे, एक बार फंसा पाओगे, दो बार फंसा पाओगे, लगातार नहीं फंसा पाओगे. The day will come, people will start ignoring you. The day will come, people will stop purchasing from you. लोग आपसे खरीदना बंद कर देंगे. People will never purchase a product from you. Then what to do? Then how to survive in the industry? That is the biggest challenge. You have to maintain it. So we are going to study about the ethical behavior in marketing and what are the marketing ethics. आगे बढ़ते हैं उसके अंदर. Definition of ethical behavior given by the Jennifer Lombardo. She is MBA in marketing. Okay, what she meant to say, she tried to understand. There are people who are waiting from 3 hours. Matter done. Definition of ethical behavior. Try to understand. There are people who are waiting from last 3 hours for some kind of activity. Ethics. The moral principles or values. The moral principles or values that generally govern an individual or group. एक ऐसा मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यूज जो कोई इंडिविजुअल को और ग्रुप को गवर्न करता है, मैनेज करता है, संभालता है. मॉरल का मतलब क्या होता है? टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड इज एथिक ओनली. हम कहते हैं ना कि मॉरल वैल्यूज
आपको अगर आप याद होगा तो व्हेन यू वर स्टडिंग इन द स्कूल, आपको एक जीरो लेक्चर यानी कि फर्स्ट लेक्चर के पहले का जो लेक्चर होता था वो आपका वैल्यू एजुकेशन का होता था। तो वैल्यू एजुकेशन का लेक्चर क्यों होता था? टू गिव यू एन इंसाइट ऑफ गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे के बीच के अंदर फर्क बताने के लिए वो लेक्चर होता था। सो ethics is nothing but the moral principle or values that generally govern an individual or group. It generally govern an individual and group. एक आदमी को भी और पूरे ग्रुप को भी। हम सब अकेले रहेंगे तो भी हमें एथिक लागू पड़ता है, और हम जब ग्रुप में रहेंगे तभी भी हमें एथिक लागू पड़ता है। बहुत जरूरी है। ग्रुप में ज्यादा कुछ चीजें आप कर सकते हैं, कुछ चीजें आप नहीं कर सकते, कुछ चीजें सही है, कुछ चीजें गलत है। ये सारी चीजों का लेखा जोखा करके प्रॉपरली सेटिंग करके आपको करना पड़ेगा। You cannot cheat the people. You cannot cheat the people. You have to make the people understand. Okay. So the moral principle or values, लाइफ में वैल्यू नहीं तो कुछ नहीं। और स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, बहुत बड़ी बात बताई थी दोस्तों। स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर का मतलब क्या होता है? कौन सा लेवल का बिहेवियर मुझे करना है, what kind of behavior I am supposed to do. Standard category, standard लेवल, मुझे वो कैसा बिहेवियर करना है, इसको कहा जाएगा एथिक। माइन इज राइट, एक पर्सन करता है, दूसरा बोलता है यू आर मिस्टेकन, तो गलत है। एक बोलता है मैं सही हूँ, दूसरा बोलता है तो गलत है। क्या सही क्या गलत? डोंट डू इट। 3 3 घंटे से किसी को लाइन में इंतजार करा के रखना, डोंट डू इट। मैं अननेसेसरी लोगों को वेट करना, डोंट डू इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, you have to make the people ready. Now when we speaks about the ethics अनरिटन रूल है उसका, प्रोटेक्ट एम्प्लॉय राइट। ध्यान से पढ़ लेना, एकदम सिंपल और सीधी भाषा में बताया गया है। प्रोटेक्ट एम्प्लॉय राइट, जस्ट a second, let me give me, keep yourself online, keep yourself online. I am just shifting my internet to the another connectivity. Yeah, there is a rule of ethic, we can say unwritten rules। ये किधर लिखा हुआ ही नहीं, लेकिन एथिक का सिंपल मतलब ये होता है कि मैं मेरे एम्प्लॉइज के अधिकार के लिए लड़ूंगा, मैं मेरे पर्यावरण को दूषित नहीं करूंगा, पोल्यूटेड नहीं करूंगा, मैं मेरे कस्टमर को प्रोटेक्ट करूंगा। 3 चीजों को प्रोटेक्ट करनी है। अगर मैं अपने आप को एथिकल कह रहा हूं तो मुझे 3 चीजों को प्रोटेक्ट करनी है। नंबर 1, एम्प्लॉय राइट्स, मेरे एम्प्लॉइज के अधिकार। नंबर 2, एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट आई विल नेवर एवर स्पॉइल दिस एनवायरमेंट। एंड नंबर 3, माय कस्टमर्स, आई विल नेवर एवर डिस्टर्ब दिस थ्री थिंग्स। बराबर है कि नहीं? सो इट इज नेसेसरी टू टेक केयर of these 3 area: the employee rights, the environment, and the customers. Business ethics.
business this is a determine company's everyday conduct. हर रोज जो कंपनी करती है उसको डिटरमाइन करने का काम करता है बिजनेस एथिक्स. कंडक्ट रूटीन, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाट एक्सेप्ट. So determine the company's everyday conduct. It reflects on how the employee acts in the business world. It reflects, ये reflect करता है क्या? How the employee acts in the business world. कंपनी के एम्प्लॉई कैसे बिहेव करते हैं बिजनेस वर्ल्ड में, how they work, how they acts in the business world. Law define the boundary of what is legal. लीगल से बाहर कोई नहीं. देखो एथिक और लीगल, ethic is nothing but what is good and what bad, but legal means you cannot do this because it's illegal, you can do this because it's legal. Define the boundaries of what is legal. The written guidelines to what must be followed in society. Written guidelines लिखा हुआ, कानून की किताब, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट, ये सारे कायदे जो है वो कायदे से बड़ा कोई नहीं है. कंपनी चलानी है तो यू हैव टू फॉलो द इंडियन कंपनी एक्ट. पार्टनरशिप चलाने तो यू हैव टू फॉलो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने तो यू हैव टू फॉलो द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1860. एज पर द रूल यू हैव टू फॉलो, यू कैन नॉट चैलेंज द रूल्स. So the laws are the written guidelines to what must be followed in society. इस समाज में हमें कैसे बिहेव करना है. Morals, the rules people develop as a result of cultural norms and values. Moral के बारे में क्या बताया गया है? The rules people develop as a result of cultural norms and values. मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा. इंडिया इज अ प्लेस ऑफ कल्चर. भारत एक सांस्कृतिक जगह है. दुनिया में भारत का खुद का अपना एक स्थान है जो दूसरे कंट्री में नहीं है, वो भारत में होता है. आज भी हम भारत के अंदर बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे फैमिली का कल्चर फॉरेन फैमिली के कल्चर से अलग है. आज भी हम जब हमारे से बड़े हमसे मिलते हैं तो हम उन्हें झुक के प्रणाम करते हैं. हमारे यहाँ पे हैंडशेक का सिस्टम नहीं है. हेलो, हैंडशेक वो अभी अभी डेवलप हुआ है. बट एट द सेम टाइम अभी जब भी हमसे कोई बड़े रहते तो हम उनको झुक के प्रणाम करते हैं. हम दुनिया में एक अलग अपनी जगह बना के बैठे हैं क्योंकि इंडिया में मॉरल ज़्यादा है, एथिक्स ज़्यादा है, कल्चर ज़्यादा है. तो जब भी हम हमारे सोसाइटी की रिस्पेक्ट करते हैं, जब भी हम ऐसा कुछ भी काम करते हैं जिससे हमें आदर्श बता सके दूसरों के लिए, वो नॉर्म्स एंड वैल्यू कहा जाता है. वैल्यू हमें बचपन से सिखाया जाता है. बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो करो या वॉटेवर. उसके बाद हमें बताया जाता है झूठ मत बोलो. हमें बताया जाता है किसी के ऊपर निंदा मत करो, ईर्ष्या मत करो. मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, कल आप ऑफिस में जाओगे, कंपनी ज्वाइन करोगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे. अच्छे लोग, बुरे लोग, उसकी दोनों के बीच की जो पहचान है वो आपको करनी पड़ेगी. वो तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा. और हमारे माइंड में इतनी शक्ति होती है कि हम उसके अंदर का भेद समझ पाए. लेकिन समझना नहीं चाहते हैं आप तो अलग बात. अगर आपको समझना ही नहीं है, दैट इज़ योर चॉइस. बट इतना मैं कहता हूँ कि वी हैव इनफ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, सही और बुरा. अब तुम्हें तो सही का भी सुनना है और बुरे का भी सुनना है.
सुनना सबका है, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या करना है जो आपको सही लगे. So you have to find out a way that is moral, that is ethic. इसी को तो कहा जाता है एथिकल बिहेवियर. किसी ने आपको बोला चल इधर से एक काम कर, मैं तुझे 10,000 रुपये देता हूँ, उसको पत्थर मार, फोड़ दे उसका सर. तुम बोलेगे चलो मैं तुम पे इतना विश्वास करता हूँ ना कि तुम किसको भी मारने का बोलो मैं मारूंगा. तो वो अनएथिकल है ना. अभी समझ में आया क्या? तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी बोले उसको कितना एक्सेप्ट करूं मैं, कितना एक्सेप्ट करूं मैं, कितना सही है कितना गलत है और क्यों एक्सेप्ट करूं मैं. Why should I accept? Try to understand. So you have to find out the difference between good and bad. You have to maintain the culture. You have to maintain the environment. You have to respect the people. कल्चर वो होता, मॉरल वो होता है जो चाइल्डहुड से हमें सिखाया जाता है. आपको पता है आपकी पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपकी पहली कॉलेज कौन सी है? आपकी पहली कॉलेज है आपका घर. एनीवे, वी आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर हाउस. हमारे घर से हम कितना सीखते हैं दोस्तों, कितना सीखते हैं. बचपन से हमें इतना सिखाया जाता है, इतना सिखाया जाता है. और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे बिहेवियर पे, हमारे परिवार ने जो हमें सिखाया है ना, उसकी असर दिखती है. आज भी आपका जो बिहेवियर होगा वो आपके परिवार ने जैसे आपको सिखाया है ना वैसा ही होगा. वो पहली यूनिवर्सिटी अपनी कौन सी है तो अपना फैमिली, दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है तो हमारे फ्रेंड्स, जिनके संपर्क में हम आते हैं, जिनके साथ रहते हैं. हमारे पेरेंट हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि दोस्ती इन लोगों से करो, अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से. ये वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि घर के बाद सबसे ज़्यादा टाइम देने वाला है तो वो अपने फ्रेंड्स पे देने वाला है. और वो अगर गलत आ गए उसके लाइफ में, वैसे वो सब गलत लोग मिल गए आपको, तो आपको संभलना मुश्किल हो सकता है. कल्चर, संस्कृति एंड अदर सोर्सेस. कल्चर यानी हमें जो हमारे संस्कृति हमारे बैकग्राउंड में मिली है उससे हमें आगे बढ़ना है. तो वो हमारा लेसन, वो हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है कि हम कैसे सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं. अब यहाँ पे आप देखो, जस्ट सेकेंड. आई हैड गेट द अंडर थॉटिंग द पर्सन ट्राइज टू से समथिंग. लॉरेंस कॉलबर्ग ने कहा है, आइडेंटिफाइड 3 levels ऑफ प्रोग्रेसिव एथिकल डेवलपमेंट. दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का. ये टॉपिक आपको लेके जाएगा कि आपका एथिकल बिहेवियर कैसा होता है, आपका एथिकल प्रोग्रेस कैसा होता है, आपका एथिकल चेंज कैसे आ सकता है आपके. ये आपको सिखाएगा. 3 levels ऑफ प्रोग्रेसिव एथिकल डेवलपमेंट. ध्यान से समझने की कोशिश करें. आंसरिंग द क्वेश्चन, answering the question, determining whether behavior is ethical. Answering the questions, determining whether the behavior is ethical. चेक करना कि ये जो बिहेवियर है वो एथिकल है, एंड व्हाट इट्स मोटिवेशन माइट बी. ये जो बिहेवियर है वो सही है या गलत है, और इसके पीछे कौन सा मोटिवेशन काम करता है, क्यों ये सही है, कितना सही है, कौन से बेस पे सही है, कैसे सही है, how it is better. You have to understand. You have to find out how it is better, how it is proper. So, determine whether the behavior is unethical, and if it unethical, on what basis? What are the motivation behind it? Okay. Pre-conventional morality. Morality in pre-convention. यानी कि हाउ मच यू आर ग्रोन अप एज अ चाइल्ड. पहले से ही तुम्हारे माइंड में क्या है, चाइल्ड लाइक मोरालिटी. कैसे कैसे मोरालिटी होती है देखो. बच्चे जैसा,
सेल्फ सेंटरशिप, खुद को ध्यान में रखे वैसा, देन एंड ड्राइवन बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट। तीन अलग कैटेगरी बताइए, बच्चे जैसा मोरालिटी, सेल्फ सेंटर यानी सिर्फ खुद का सोचने वाला मोरालिटी, एंड ड्राइवन बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट, और ड्राइवन बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अच्छा काम करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, गलत काम करेगा तो पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है ना? यानी दिस वे और दैट वे, यू कैन नॉट बी हैव थर्ड वे, यू कैन नॉट हैव थर्ड वे। सो childlike morality, self-centered and driven by the reward or punishment, reward or punishment। आगे बढ़ते हैं इसको। कन्वेंशनल मोरालिटी, पहला क्या था? प्री कन्वेंशनल, अभी क्या है? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में क्या आएगा? बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सोसाइटल रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन, बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सोसाइटल रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन, समाज के कायदा के अनुसार, समाज के रूल्स के अनुसार काम करना। बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल रूल्स, उसमें कैसा था? चाइल्ड लाइक, सेल्फ सेंटर्ड, रिवॉर्ड पनिशमेंट देकर ऐसा मोरालिटी। प्री कन्वेंशन, एक कन्वेंशन, बिहेविंग अकॉर्डिंग टू societal rules and expectation, okay, that is a conventional morality। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मोरालिटी, डू इट मीन्स करना ही पड़ेगा, पुश द अंडर कोटिंग, तो करना ही पड़ेगा। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल and post conventional morality, people are more concerned about, people are more concerned about how they view themselves, how they view themselves, and not about what other things। देखो बहुत बड़ी बात बताई, पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट हाउ दे व्यू देमसेल्फ एंड नॉट अबाउट व्हाट अदर थिंग। बहुत ही जरूरी चीज है ये, जरा ध्यान से समझना। हम हमेशा अपना लाइफ का इम्पोर्टेंट समय जो है वो सोचने में निकाल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो आपको यहाँ तक कहता हूँ कि सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम क्या है कहना, लोग क्या है कुछ भी कहेंगे, शुड नॉट बिलीव। हमें क्या करना है? हमें वो करना है जो हमें पसंद है, हमें वो करना है जो हम चाहते हैं, हमें वो करना है जो सही है। सही है यानी कि हमारे लिए सही है। सो प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन एंड पोस्ट कन्वेंशन, एंड पोस्ट कन्वेंशन। प्री कन्वेंशन में हमने देखा चाइल्ड लाइक बिहेवियर, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर एंड ऑल। कन्वेंशन में हमने देखा जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा सोसाइटी का, उसको हम अच्छे से फॉलो करेंगे। पोस्ट कन्वेंशन में हमने देखा पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट हाउ दे व्यू देमसेल्फ एंड नॉट अबाउट व्हाट अदर थिंग्स। ये सेंटेंस कितना पावरफुल सेंटेंस है, ध्यान से पढ़ो। हमें क्या लेना देना कोई क्या सोचता है, हाउ दे व्यू देमसेल्फ, हम हमें अपने आप को कैसे देखते हैं वो मोर इम्पोर्टेंट है, एंड नॉट अबाउट अदर्स, एंड नॉट अबाउट अदर्स। सो पोस्ट प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन एंड पोस्ट कन्वेंशन, तीन लेवल पे हमें काम करना है। ये तीनों अलग अलग स्टेज है, कोहलर ने दिया गया मोरालिटी है। ये तीनों जो है वो अलग अलग स्टेज है, कोहलर ने दिया गया मोरालिटी है। अब मैं आप लोगों से दूसरा वीडियो शेयर करूँगा, जस्ट सेकेंड। Just give me a 30 seconds so I can।
Can you able to see this window? Can you able to see this window? Ethical issues in advertising का window दिख रहा है आपको दोस्तों? Say yes or no fast. Come on. Yes, yes, yes. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. अभी हम थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग पे बात करेंगे. एथिकल इश्यूज इन एडवर्टाइजिंग. थोड़ा देखो हम एथिक के अंदर जा रहे हैं, अभी धीरे 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 जा रहे हैं. अभी थोड़ा इशू डिस्कस करेंगे. एथिकल इश्यूज इन एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग में एथिक्स को बहुत बार तोड़ा गया है, बहुत बार मोड़ा गया है, एथिक को बहुत बार इग्नोर किया गया है. जबकि एथिक फॉलो करके चलना चाहिए, बट पीपल आर इग्नोरिंग जस्ट टू मेक अ गुड प्रॉफिट. अच्छा पैसा बनाने के चक्कर में लोग लोगों को नुकसान कर देते हैं. कुछ भी एडवर्टाइज करते हैं, कुछ भी एडवर्टाइज मतलब कुछ भी, दे आर सेलिंग लाइक एनीथिंग, कुछ भी एडवर्टाइज करते हैं. और द एडवर्टाइजिंग मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू. इतनी बड़ी बात है. एडवर्टाइजिंग मस्ट बी हैविंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू. एडवर्टाइजिंग कैसी होनी चाहिए? सच होनी चाहिए, ट्रूथ होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए. सो एडवर्टाइजिंग मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू. अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग के अंदर एथिक का मीनिंग. आप बोलोगे सर अभी एडवर्टाइजिंग में एथिक क्या होता है? बहुत बार कंपनी कहती है वी आर द फर्स्ट नंबर वन कंपनी इन द इंडिया. तो कितना सच होता है? बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं. सो एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग मीन्स ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, and absence of misrepresentation of fact in advertising. एब्सेंस ऑफ का मतलब होता है ना होना. क्या ना होना? मिस रिप्रेजेंटेशन ना. लोग क्या करते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं. सो एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग मीन्स ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, ट्रूथ होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए. Presentation is very. There should not be a misrepresentation. मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? रॉन्ग तरीके से दिखाया गया, जो है ही नहीं वो बताया गया, जो गलत है वो बताना, जो ओरिजिनल नहीं है वो बताना, लोगों को फंसाने की कोशिश करना, लोगों को प्रोडक्ट बेचने के लिए रॉन्ग तरीके से बताना. सो दैट इज व्हाट मिसरिप्रेजेंटेशन. मिस यानी कि गलत. Advertising is basically for providing information to consumers. Obviously, advertising का ultimate purpose क्या होता है? To provide knowledge to the customer, to provide information to the consumer. It is for sales promotion. इसका main purpose क्या है? Sales promotion. Sales को आगे बढ़ाना है. Through persuasion. Persuasion का मतलब होता है लोगों को मनाना, कन्विंस करना, परसुएड करना. परसुएशन का मतलब रिक्वेस्ट नहीं होता है. डोंट मिसअंडरस्टैंड. परसुएड करना यानी उन लोगों को अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार करना. मिस अंडरस्टैंडिंग में जाना नहीं कि रिक्वेस्ट करना. इट्स परसुएशन. ट्रूथ एंड ऑनेस्टी. Truth and honesty should not be discarded in advertising. सच्चाई को छोड़ के कोई बात नहीं करेगी. जस्ट अ सेकेंड.
नो बडी विल, ये फोन को जवाब देने को बोलो उसको। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी शुड नॉट बी डिस्कार्डेड इन एडवर्टाइजिंग। ट्रूथ और ऑनेस्टी को कोई छोड़ेगा नहीं। Advertising as a profession is subject to certain ethical standard. Tomorrow, if you will choose an advertising as a profession, but you have to take और एक आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, मैं प्रोडक्ट को बेचूंगा, मैं प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करूंगा, सब करूंगा, लेकिन 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 लोगों को फंसा के नहीं। मुझे ऐसा कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं करना है जो लोगों को फंसाने के लिए किया जाए। एडवर्टाइजिंग एज अ प्रोफेशन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एथिकल स्टैंडर्ड्स। एग्जागरेशन तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मिसलीडिंग क्लेम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, झूठे क्लेम नहीं बताऊंगा, झूठे प्रॉमिस नहीं करूंगा लोगों को। शुड बी अवॉइडेड इन द एडवर्टाइजिंग, शुड बी अवॉइडेड इन द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज अ प्रोफेशन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एथिकल स्टैंडर्ड। उसमें मैं एग्जागरेशन नहीं करूंगा, मिसलीडिंग क्लेम नहीं करूंगा, कोई फॉल्स प्रोमिस नहीं करूंगा। शुड बी अवॉइडेड इन द एडवर्टाइजिंग। तो यही होता है मीनिंग ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। पहला पॉइंट कह रहा है एडवर्टाइजिंग मीन्स ट्रूथफुलनेस एंड एब्सेंस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। सच्चाई बोलेगी और मिसरिप्रेजेंटेशन से दूर रहेगी, फैक्ट बताएगी। इट इज बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर, इट इज फॉर सेल्स प्रमोशन थ्रू परसुएशन। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी शुड नॉट बी डिस्कार्डेड। ट्रूथ और ऑनेस्टी कभी छोड़ेंगे नहीं हम। एंड एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। वी विल अवॉइड द एग्जैगरेशन, वी विल अवॉइड द मिसलीडिंग क्लेम्स, वी विल अवॉइड द फॉल्स प्रॉमिसेस while doing the advertising। इसी को कहा जाएगा ethics in advertising। we have to follow some standard, we have to respect the company का policy, we have to respect the feelings of the consumer। we should not try to cheat them just to make a little bit more profit। कुछ हम अच्छे प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आपको अपने कस्टमर को खोना नहीं चाहिए। बिकॉज यू कैन मेक फुल ऑफ कस्टमर वंस, नॉट ऑलवेज। हमेशा नहीं कर सकते आप। एक बार फंसा सकते हैं, दो बार फंसा सकते हैं, बार बार नहीं। बट वंस द कस्टमर इज अनहैप्पी विथ यू, एक बार कस्टमर नाराज हो गया आपसे, देन फिनिश। कभी आपकी कंपनी ज्वाइन करेगा नहीं, ना कभी आपके पास आएगा, ना कभी आपसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा। फिर क्या करेगा? यू आर लूजिंग अ पर्सन फॉर द लाइफ टाइम, not for a day, not for a month, not for a year। You are losing that customer, that customer will never come back। and the biggest problem is that ना वो आएगा, ना दूसरे कस्टमर को यहाँ पे आने का बताएगा। और कोई बकाता रहेगा आपके पास, उसको भी भगाएगा, उसको भी भगाएगा। So this is what the ethics in advertising। You have to follow certain standard, you have to follow certain rules, you have to follow certain norms। एथिकल बिहेवियर कहते हैं जिसको, एथिकल रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, ये जो नॉर्म्स ऑफ एथिकल एडवर्टाइजिंग है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिवीजन दे दूँ। अगेन आई विल गिव यू द रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस। We have studied about what is ethic, what is to be done, what is not to be done, how it is to be done, how it not to be done, who will handle, how it will be handled, किससे हमें सही कितना बात करना है, कैसा बात करना है, कितना इम्पोर्टेंस देना है। हमें एथिक कौन सिखाता है? हमें हमारा परिवार एथिक सिखाता है। हमारे बचपन से जो हम सीखते आए वो हमें एथिक सिखाता है। हमें एथिक कौन सिखाता है? हमें एथिक सिखाता है हमारा फ्रेंड्स, हमारे सर्कल, हमारे ग्रुप, हमारे नोइंग अननोइंग पीपल, हमारे जानकार लोग जो हमसे, हम जितने लोग ज़्यादा लोगों के साथ रहेंगे उतना हमारा एथिक और स्ट्रांग होता है। और भी हम उनसे बात करते, और भी हम रहते हैं। जितना हमें सीखने मिलता है लोगों से, वो हम ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा एडवर्टाइजिंग में एथिक क्या होता है, तो हमने देखा कि वो ट्रूथ होना चाहिए एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कंज्यूमर को जो भी इंफॉर्मेशन देना है वो सच्चा, ट्रू, उसके सामने फैक्ट रखने का है। कोई भी फंसाने का काम करना नहीं है। और हमने ये भी देखा
कि देर शुड नॉट बी एनी एग्जागरेशन मतलब तो ओवर स्टेटमेंट, मिसलीडिंग देम, फॉल्स प्रॉमिस, ये सब करना नहीं है. नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर विथ माई लेक्चर. ज्वाइन इमीजिएटली विद द अनदर लिंक आई एम वेटिंग. इमीजिएटली मैं स्टार्ट करता हूँ बिकॉज आई हैव टू फिनिश अर्ली. थैंक यू.